أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم حضرت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، رمضان عشق ہے نشریات 24 نیوز لائیو پر آپ ہمارے ساتھ. 12 رمضان مبارک 1438 ہجری، جمعرات کا دن 8 جون 2017. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. مفتی نور رحمانی ڈاکٹر مراحل کو السلام علیکم. تمام ناظرین اور تمام حاضرین کو السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی رونق آپ لوگوں نے کی ہوئی آج. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب اتنے پیارے لگ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی مجھے پیاری پیاری ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں سجی ہوئی. ننھی سی جان گود میں بھی نظر آ رہی ہے. اللہ ماشاءاللہ یہ سب رونقیں ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حضرات. رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا انسان اس وقت تک توبہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت پر کوئی شک نہیں رہتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. بے شک ایسا ہے، بے شک ایسا ہے. اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی حضرت، پتہ نہیں ہم اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا نہیں ہوگا. اگر کبھی کبھی تو مجھے آپ سے جواب ملتا ہے، کبھی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ جواب دیتی ہیں، کبھی کبھی حسان مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں سمجھنے میں، اور ایمان مضبوط ہو جاتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا خدا نہ خواستہ تو مجھے پاکی نصیب نہ ہوتی، مجھے وضو نصیب نہ ہوتا، مجھے نماز نصیب نہ ہوتی، مجھے پاک جگہ سجدہ کرنا نصیب نہ ہوتا، میرے کانوں میں اذان کی آواز آ رہی ہے، یہ کیا کم کرم ہے؟ یہ ایک بزرگ سے پوچھا جی حضرت. کہ یہ بتائیے کیا ایک نوجوان لڑکا آیا کہنے کا حضرت یہ بتائیے کیا میری نماز قبول ہوتی یا نہیں؟ تو بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا پاگل جب تجھے اپنے گھر میں بلا لیا اب بھی پوچھتا ہے کہ قبول ہوتی یا نہیں؟ اللہ اکبر سبحان دیکھیں اللہ. آپ کے گھر میں ہمیشہ وہ شخص جاتا ہے کہ جو سب کی آپ مائک کا سان پیارا ہو، رکھیے گا. آپ کا پیارا ہو، اور جو اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو یقین جانی کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے اور وہ تو نوازنے والا ہے. بے شک بے آپ نے شک. جب بات توبہ کی ذرا اپنی زندگی کا مطالعہ کریں. ہم خطا پہ خطا کرتے ہیں، وہ عطا پہ عطا کرتا بے ہے. شک ہماری بے شک. خطائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اس کی عطائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. بے شک محبت سبحان. پیار کے بندہ پیار و محبت سے قریب آ جائے. جب آپ نے بات کی تو ایک وہ واقعہ میرے ذہن میں آیا. پلیز. وہ بہت پیارا واقعہ ہے خوبصورت کہ امام ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ عراق کے بہت بڑے محدث گزرے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی دن تک خانہ کعبہ میں گزارے. ایک نوجوان لڑکا ہے بہت خوبصورت، وہ غلاف کعبہ پکڑ کر رو رہا ہے اور اتنا زار و قطار رو رہا ہے کہ اس کے آنسو جو ہیں وہ زمین تک آ رہے ہیں. جہاں وہ کھڑا وہ جگہ تک گیلی ہو گئی. مسلسل زار و قطار رو رہا ہے. کئی دن کے بعد مجھے ہاتف غیب سے آواز آئی، سفیان اس سے کہہ دو کہ ہم نے اس کی توبہ قبول نہیں کی، ہم نے اس کی توبہ قبول نہیں کی. یہ آواز آئی.
सुफियान सौरी कहने लगे कि ए अल्लाह, मैं तो इसको बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि ये ज़ारो कतार रो रहा है, खिलाफ काबा पकड़ के रो रहा है, अब मैं किस तरह जाऊँ, इसका तो दिल बड़ा टूटा हुआ है। ये सिर्फ एक बात करता है कि ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, अब मैं इसके पास जाऊँ। कहते जब मैं इसके पास गया, मैंने ऐसे कंधे पे हाथ रखा तो नौजवान ने मुड़कर देखा और कहा मन अंता, कौन है? आपने फरमाया सुफियान सौरी। उसने कहा अल हिराकियन, क्या इराक वाले? कहा नाम, हाँ मैं वही हूँ। कहा क्या वजह है? यानी कि वो मुझे अल्लाह की तरफ से ये हुक्म दिया गया कि मैं कहूँ कि तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हुई। उस नौजवान ने मुस्कुरा के देखा जो रो रहा था। कहने लगा भाई मुझे ये आवाज़ तो 6 सालों से आ रही है। अल्लाहु अकबर। कहने लगा फिर क्यों? कहा मुझे इसमें ही मजा आता है कि मेरा परवरदिगार मुझे कहता है कि तौबा कबूल नहीं, वो चाहता है कि मैं उसके दर पे आता रहूं। अल्लाह, ये सुभान अल्लाह, मोहब्बत का एक करीना है। सुभान अल्लाह, तो आप तौबा, और कल क़यामत के दिन, अभी जो आपने दुआओं की बात की बहन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास कुछ लोग जाएंगे तो उनकी नेकियां पहाड़ जितनी होंगी। ऐ अल्लाह हम तो जानते हैं नेकियां पहाड़ जितनी होंगी। ऐ अल्लाह हम तो जानते हैं कि हमारे इतने अमाल नहीं थे। कहा जो तुम दुआएं मांगते थे ज़मीन के अंदर मैं कबूल नहीं करता था, आज मैंने उसका सिला दिया है। सुभान बज़ाहिर तो वो कबूल नहीं होती थी, मगर कबूल हो रही होती थी। वो बैंक बैलेंस जमा हो रहा हो, फिर बंदा ख्वाहिश करेगा काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल नहीं होती और आज मुझे सब कुछ मिल जाता। सुभान अल्लाह हज़रत, तो सुभान अल्लाह। आपको चाहिए कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गिल गिला के दुआएं मांगते रहें। और फिर हम यहाँ दुरूशी की कसरत करवाते हैं। देखिए बहन, किसी को कॉल करनी हो ना, मैं एक बहुत नुस्खा दे रहा हूँ ऑडियंस को भी, घर में बैठने वाले नाजरीन को भी। आप सब लोगों को आवाज आ रही है ना? आ रही है ना हज़रत की? आवाज़? आ रही है ना? गुड। आप सब में कौन चाहता है कि मेरी दुआएं कबूल हों? सभी चाहते हैं, हर एक की ख्वाहिश है कि भाई दुआ किस तरह कबूल हो। अब चलते हैं सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, पूछते हैं हजरत ये बताइए ये दुआएं कबूल किस तरह होती हैं? आप फरमाते हैं कि अव्वल में दुआ के और आखिर में दुरूद मुस्तफ़ा को पढ़ लो, क्योंकि दुरूद हमेशा कबूल होता है। अब जब तुम शुरू में और आखिर में दुरूद पढ़ोगे और बीच में अपनी दुआओं को रखोगे तो अल्लाह अब दुआ को नहीं देखेगा बल्कि नाम मुस्तफ़ा को देखेगा। और नाम मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह ताला तमाम दुआओं को कबूल कर लेगा। तो एक नुस्खा यहाँ भी, अब जिस तरह आप मोबाइल है ना, आप किसी को कॉल करनी हो तो डायलिंग कोड मिलाया जाता है। ऐसा ही है, डायलिंग कोड के बाद फिर नंबर आता है। ऐसा ही है ना, कोड जो होता है नेटवर्क का पहले कोड होता है फिर नंबर मिलाता है। बहुत अच्छा है, बहन ने लफ्ज़ इस्तेमाल की, नेटवर्क का कोड। नेटवर्क का तो कोड, नेटवर्क अल्लाह क्या, नेटवर्क का कोड दुरूद मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। अब आपने दुरूद मुस्तफ़ा शुरू और आखिर में पढ़ लिया, लाइन मिल जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। एक बार फिर सब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए इस महफिल में। ख़वातीन हज़रात, सेगमेंट को आगे लेके चलते हैं। थोड़ी देर बाद आपकी कॉल्स होंगी, यहाँ पर आगा भाई भी तशरीफ़ लेकर आएंगे इंशाल्लाह। कॉल्स कीजिए, आप लोगों को जो मसला है बयान कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। मुफ्ती नूर रहमानी आपके साथ दीन कुरान की रोशनी में आपकी रहनुमाई फरमाएंगे, क्या वजीफ़ा पढ़ना चाहिए वो हेल्प करेंगे। आगा भाई यहाँ पर हेल्प करेंगे कि आधा आवाज़ बहुत कम आ रही है बस, अच्छा, और वो हेल्प करेंगे कि नंबर्स के हिसाब से, नाम के हिसाब से आपको कौन सा विट सूट करता है या आपके इस वक्त क्या हालात शो हो रहे हैं उनके हिसाब में। डॉक्टर साहब हेल्प करेंगी आपको हर तरीके से कि किस तरीके से आप अपना एनवायरनमेंट हेल्दी और अपने आप को आप हेल्दी रख सकते हैं। हर तरह से हमारे पैनलिस्ट आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर मौजूद। कल की मेरी बहन जो आई थी वो मुझे इतना ज़्यादा गहरा असर उनका रह गया था कि उन्होंने 21 साल अपनी शादी के बहुत मुश्किल से गुजारे, लेकिन फिर भी वो उन्होंने छोड़ा नहीं, हिम्मत पकड़ी उन्होंने। आज मैं हदीस पढ़कर आया सबर के हवाले से जी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला शाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी शाद फरमाते हैं सहाबा से कि अल्लाह शाद फरमाता है अगर मैं दुनिया की कोई चीज़ ले लूँ, दुनिया की कोई भी चीज़ ले लूँ और बंदा सबर कर ले तो अल्लाह फरमाता है मेरे पास जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है। अल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि जन्नत जो सब कुछ है, जन्नत जो सब कुछ है। रियादुस सालिहीन के अंदर ये हदीस पढ़ी कि अल्लाह फरमाता है उसका जो बदला सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है। मेरी अम्मा तो फिर वाकई में ऐसे भी जन्नती हैं, लेकिन अब ये सुनने के बाद तो अल्फाज और भी ज्यादा से माशाल्लाह। सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है। मेरी वालिदा ने अल्लाह के बाद तो सब कुछ है। एक छोटे से बेटे को खोया जब नौमौलूद थे, फिर उसके बाद हस्बैंड को खोया, फिर उसके बाद माँ बाप को खोया, फिर एक जवान बेटे को खोया 3 से 4.5 साल पहले। अब नौमौलूद बच्चे की बात की ना, वो बहनें भी शायद प्रोग्राम देख रही हैं जिनका छोटा बच्चे का इंतकाल हो गया हो, किसी का महीने, किसी का सवा महीने का, उन बहनों से मुखातिब हूँ। कल क़यामत के दिन हदीस में आता वो बच्चे जन्नत के बाहर खड़े होंगे और वो जन्नत में जा नहीं रहे होंगे। परवरदिगार कहेगा कि जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। वो कहेंगे हम अपने माँ बाप को लेके जन्नत में दाखिल होंगे।
تو وہ نومولود بچے جنت کے اندر داخل ہوں گے ماں باپ کو لے کر. تو اگر آپ سے بچہ اللہ نے لے لیا ہے تو صبر کیجئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بے شک بے شک, بس اللہ پاک ان کو صحت زندگی دے. خواتین و حضرات, اس سیگمنٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ کی فون کالز کے ہم منتظر. رمضان عشق نشریات جاری, وظائف کے حوالے سے یہ سیگمنٹ اب شروع ہو چکا ہے. آپ کالز کیجئے, یہاں پر بھی آپ لوگ بیٹھے سوالات تیار کر لیجئے. آپ نے کسی اسپیسیفک چیز کو لے کے سوال کرنا ہو تو ضرور کیجئے گا, کوئی وظائف پتہ کرنا ہو ضرور کیجئے گا, کوئی چیز حساب کروانی ہو, چیک کروانی ہو ضرور کیجئے. رمضان ہے, رمضان عشق ہے نشریات اس وقفے کے بعد جاری. ہمارے تینوں پینلسٹ آپ کی کالز اور آپ کے سوالات کے منتظر ابھی حاضر ہوتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ بچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شوام. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا 8 میں دیکھیں پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو
देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर में शोर मचाया। रमजान रमजान इश्क है, रमजान इश्क है, रमजान इश्क है। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं रमज़ान इश्क नशरियात बराह रास्त 24 न्यूज़ HD पर। अब आप लोगों की फ़ोन कॉल्स और आप लोगों के सवालात हमारे पैनलिस्ट के साथ। आगा भाई भी हमारे साथ आ चुके हैं और जवेर सलीम ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आगा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। बच्चे कैसे हैं? खैरियत से हैं आगा भाई? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खुश रखें आप, आपको भी भैया, आपको अपने ज़मान में रखे अल्लाह ताला। अच्छा, कल के बाद मुझे तो बहुत अच्छी लोगों की तरफ से आया कि हमें भी कुछ सवालात करने हैं। तो मैंने कहा देखिए वैसे तो मैं पूछ लूँगी अपने भाइयों से और बहन से, लेकिन अगर आपको वाकई में उनसे बराह रास्त पूछना है तो आपको उसके लिए कॉल करना पड़ेगा। आप कॉल्स कीजिए, हमें हमारा कॉलिंग नंबर ऑन स्क्रीन आ रहा है। आप कॉल्स करके हमसे जो सवाल करना है आप कीजिए। जी हमारे अवाम में से जो सवाल करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी मेरी बहन, उनकी तरफ लेके जाइए, अपना नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम जी माया पे मुझे अपनी अम्मी के लिए सवाल करना था कि मेरी अम्मी को घुटने में बहुत दर्द है और गेप आ गया और घुटने सूज जाते हैं और कमर में भी बहुत दर्द है, यानी कि इतना दर्द होता है कि रात में नींद भी नहीं आती है अम्मी को, बहुत दर्द होता है। और फिर अम्मी इलाज करवा रही है ना, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा है कि साइकोडोसिस बीमारी है और डॉक्टर ने ये भी बोले कि तक आप दवा खाती रहेंगी तो ठीक रहेंगी और फिर वरना तो आपको ये बीमारी नहीं ख़त्म नहीं होगी। तो आप बता दें, कोई बस पूछना चाहती हूँ मैं कि मेरी अम्मी ठीक हो जाए। तो अरे इसमें रोने की क्या बात होगी गुड़िया? रोने की, मुझे पता है मम्मा की बात होती है ना, तो मैं भी अभी ऐसी जैसे वो अभी हो रही है ना उसकी हालत, तो वो उस बच्ची को देखिए अगर आप देख सकते हैं तो मैं भी अभी ऐसी हो गई थी जब अभी मामा की बात की ना, तो ऐसी बहुत तकलीफ होती है ना उनको। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। पेन वगैरह कुछ है तुम्हारे पास? पेन वगैरह कुछ है? लिख लो, जो वो बताते हैं लिख लो गुड़िया। सबसे पहले जी 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 देखिए, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम 313 मरतबा पढ़ें और जैतून का तेल इस्तेमाल करें। 313 मरतबा सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये मैं खुद बहुत पढ़ती हूँ इसलिए मेरी ज़बान पे चढ़ा हुआ है। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, जैतून का तेल और उसमें जो देसी लहसुन होते हैं ना, छोटे वाले जो लहसुन जिसे कहते हैं, उसको पीस के
उस हल्की सी आंच में गरम कर के जैतून के तेल में डालकर और सलामुन कौलन अमीन 313 मरतबा फूंक कर तेल पर फूकें। उसके बाद जो है वो घुटने पर इस तरह मलें, ऐसे करके ऊपर से नीचे की तरफ जाए। अच्छा, ऊपर नीचे नहीं करिएगा बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ जाए। ठीक है, इस तरह हल्के हाथों से मले। और जिस तरह पीठ के अंदर भी जो तकलीफ होती है, जिनकी कमर के अंदर तकलीफ होती है, मोरों की तकलीफ होती है, उनको भी चाहिए कि सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम 313 मरतबा, जैतून का तेल और उसके साथ देसी लहसुन, ठीक है, उसको थोड़ा सा हल्की आंच में पकाकर या गर्म करके वो इस्तेमाल करें। एक चीज़, उसके साथ फिर एक जड़ी बूटी का नाम होता है सूरनजान, ठीक है, आसानी से मिल जाती है बाजार के अंदर। वो भी डॉक्टर जो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एलोपैथिक जो भी हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो करते रहें, ठीक है, मगर इसके साथ एक जड़ी बूटी है सूरनजान, सही, या वो टैबलेट की सूरत में मिल जाती है, वो इस्तेमाल करें तो बहुत जल्दी अफाका हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया ये मीजान, लिखती रहो, कुछ भी पूछना हो बीच में ब्रेक में पूछ लेना, ठीक है। डॉक्टर साहब भाई, आगा भाई, आप कुछ बताना चाहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यही कहूँगा कि अवल तो ये अपने डॉक्टर से और तिब से चेक करवा लें। चेक कराने के बाद अगर वो दवाई खाने का, अगर दवाई का असर नहीं होता है तो सिर्फ 10 मरतबा अल्लाहु समद पढ़कर पानी के ऊपर फूंक कर उस दवाई को इस्तेमाल करने से उसको शफा होगी और कोई भी बीमारी और किसी किस्म की भी बीमारी होगी उससे शफा कामिल आता है इंशाअल्लाह। 10 मरतबा अल्लाहु समद। हम और कॉल से लेते हैं, फिर ज़्यादा कॉल्स लेते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, और किसी ने सवाल करना है तो मैं, अच्छा माशाल्लाह, इस तरफ जो पिंक पे हैं, फिर पीछे की तरफ। जी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा सवाल ये था कि मेरे ही नहीं बल्कि हर घर का ये हो रहा है कि बच्चे आपस में ना, वो जो हमारे बचपन में मोहब्बतें थी ना बहन भाइयों में, मतलब बार बार छेड़खानियाँ, लड़ाई झगड़े, मतलब पूरा दिन ये निमटाने में गुजर जाता है। तो कोई ऐसा वजीफ़ा हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आपस में मोहब्बतें बढ़ें और ये लोग एक दूसरे का अदब लिहाज, मोहब्बतें जैसी पहले थी वो दोबारा आ जाएं। पता नहीं कहाँ चली गई हैं वो। तो मैं डॉक्टर साहब से कहूँगी कि अगर वो पहले इस बात के जवाब दें, फिर मैं आप लोगों से लेती हूँ। बिल्कुल, इसके लिए जैसे बच्चे इन्होंने कहा कि हाइपर हो गए हैं और उनके अंदर मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, तो उसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है लेवेंडर ऑयल और ऑरेंज ऑयल। ऑरेंज ऑयल और लेवेंडर ऑयल, इन दोनों को मिक्स करके रख लें बच्चों के कमरे में, उनके बेड के ऊपर, तकिए के ऊपर, उनकी टेबल के ऊपर, नहीं तो उनके इधर हाथ के कलाई के ऊपर लगा दें। ठीक है। और उससे क्या होगा कि थोड़ा सा वो रिलैक्स होंगे, काम होंगे। सेकेंड है कि महीने का जो पहला जुम्मा आता है, किसी भी मतलब हर महीने के पहले जुम्मे, इस्लामिक महीना है तो ज़्यादा अच्छा है, पहले जुम्मे को जो है या कुद्दूस हो 100 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पानी पे दम करें, महीने में एक ही बार करना है और बच्चे को पिला दें। बच्चे ताबेदार और फर्माबरदार हो जाएंगे। आप लिख लीजिए ये सारी चीज़ें ना, आप लोग भी पेन अपने मोबाइल्स में नोट कर लीजिए, ये हर घर में वाकई सही कह रही हैं, ऐसा है। बता दीजिएगा, या कुद्दूस हो 100 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पानी पे दम करके बच्चों को पिलाना है और महीने में बस एक बार करना है कि आप खुद कहेंगे बच्चे बहुत फर्माबरदार और ताबेदार हो गए हैं। अच्छा माशाअल्लाह। एक चीज़ कहना चाहूँगी आपकी इजाज़त से कि हम लोग जब पढ़ते हैं बहुत सारे इसमें ग्रामी में, तो तलफ़ुज़ का फ़र्क आ जाता है। अक्सर जो ख़वातीन हैं जिन्होंने पहले से कुरान पाक पढ़ा है तो कुद्दूस सो पढ़ती हैं, कुद्दूस सो नहीं होता, या कुद्दूस सू पढ़िएगा जब आप पढ़ें तो इंशाल्लाह इसका फ़ाक़ा ज़्यादा। या कुद्दूस सो वाव नहीं आता इनमें, पेश आएगा। या कुद्दूस पढ़ लें, या कुद्दूस पढ़ लें, आगे पीछे ना, या कुद्दूस। प्रोनाउंसिएशन की जो तब्दीली होती है उससे माना तब्दील हो जाता है। तब्दील हो जाता है। ज़ेर लग जाएगा तो माना कुछ और हो जाएगा, ज़बर लग जाएगा तो माना कुछ और हो जाएगा, ज़ेर हो जाएगा तो माना कुछ और। तो फिर जैसे आप मुहक्किक है ना, मुहक्किक काफ वाला, तो उसका मतलब वो तहकीक करने वाला, और मुहक्किक का मतलब छोटा काफ, इसका मतलब खुजाने वाला। ओह, अब देखो कितना माना तब्दील हो कितना गया। बड़ा माना है वाकई। मुहक्किक है तो तहकीक करने वाला और मुहक्किक है तो खुजाने वाला। अल्लाहु अकबर। तो इससे जरा इसका ख्याल करें। मुझसे कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं रुखसाना बात कर रही हूँ। हमें आवाज़ कम आ रही है। कराची से। रुखसाना बात कर रही है कराची से। जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। माया जी। जी, मुझे आपसे मालूम करना था, असल में मेरे घर में बीमारी परेशानी बेइंतहा है। ठीक बीमारी इस कदर है, मुझे कैंसर हो गया है, मेरे हस्बैंड की शुगर कंट्रोल में नहीं है, बेटा मेरा स्पेशल है, मतलब घर में एक ही मसला खत्म नहीं होता तो दूसरा शुरू हो जाता है। अल्लाह अकबर। परेशानी जी। आप आगा भाई से बात कीजिए ताकि आगा इनका जरा डिटेल ले लीजिए, नाम वालिद के। जी, आप अपने नाम और अपने वालिदा का नाम और वालिद का नाम बताएंगे जरा। जी, मेरा नाम मैंने बताया रुखसाना है, वालिदा का नाम जरीना और वालिद का नाम रमजान है। ठीक है।
جی آگے صاحب بہت پریشانی ہے, بیماری بہت ہے گھر میں, پریشانی. ہاں یہ اکثر میں نے نوٹ کیا ہے کہ انفیکٹ میں ظاہر میں ہر بات پہ کہتی ہوں, آپ لوگ کہتے ہو کہ بناتی ہے باتیں, لیکن میرا ہے ایکچولی لوگوں سے اتنا رابطہ کہ میں ہر چیز کا مشورہ رحمانی بھائی سے لیتی ہوں, امرین سے لیتی ہوں, آپ لوگوں سے لیتی ہوں. یہ ہوتا ہے رخسانہ, آپ صحیح کہہ رہی ہیں بالکل, کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بیمار جو رہتا ہے نا, اس کے حوالے سے بھی ہمیں تحقیق کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ یہ دراصل مسئلہ کیا ہے. آپ آغا بھائی. جی میں ایک وہ جو بہن سوال کر رہی تھی اس حوالے سے, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی جو سوروں کی فضیلتیں بیان کی ہے, ہم زیادہ تر سورہ رحمان, سورہ یاسین, آیت الکرسی پڑھتے ہیں, جبکہ اس کے علاوہ بھی ایسے قرآن مجید کے سورے ہیں فضیلت میں, شرافت میں, کام میں, زندگی کو سنارنے میں, آگے بڑھنے میں کمال کے سورے موجود ہیں. آپ پڑھیے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ جن کی جتنی تعلیم فرمائی ہے, جتنی اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں, اتنا کسی اور سورہ کے نہیں ہے قرآن مجید میں. سورہ جن کے بارے میں پڑھنے والے میں گھر میں جو اگر ماں یا باپ پڑھے تو گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتی ہیں, شیاطین داخل نہیں ہوتا ہے, جنات داخل نہیں ہوتے اس گھر کے اندر, وہ گھر جلنے سے بچتا ہے, چوری سے بچتا ہے. بالخصوص جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتا ہے, میاں بیوی میں تفریق ہوتی ہے, نفرت ہوتی ہے, بہن بھائی ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ سورہ جن پڑھنے سے محبت اور اتفاق پیدا ہوتی ہیں. آپ سب پڑھیے گا, سورہ جن کی بہت فضیلتیں ہیں. میں اس وقفے کے بعد کہوں گی نور رحمانی صاحب بھی ذرا اس حوالے سے ان کی مدد فرمائی کا بہن کی, یا اور گھروں میں جن میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک بیماری ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے, ایک انسان ہیلدی نہیں ہو پاتا, دوسرا جو ہے وہ سک ہو جاتا ہے, انویل ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ان کو بھی ہمیں میڈیکلی بھی دیکھنا ہے اور ہوش و آواز کے حساب سے بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا پڑھ سکتے ہیں. سفر کے بعد آپ کی کالز, آپ کے سوالات اور ہمارے ایکسپرٹس کے وظائف ابھی حاضر ہوتے ہیں. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ بچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں
मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे दुआ नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। सड़कों पर लाकर छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं।
और सरबलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सरबलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाज रमजान इश्क में आपको एक बार करते हैं खुश आमदीद। अगर आप लोगों ने अभी हमारी नशिया ज्वाइन की है तो आपको बताते चलें कि सेगमेंट वज़ाइफ के हवाले से हमारा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी 2-3 कॉल्स भी आ चुकी हैं। हमारी ख़वातीन ने और भी बहनों ने बहुत सारे सवालात किए। एक सवाल का जवाब मुफ्ती नूर रहमानी से उन हिसाब से उन खातून का जिनके घर में प्रॉब्लम था कि पहले हस्बैंड बीमार होते हैं, फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं, फिर मैं बीमार हो जाती हूँ, फिर घर में किसी ना किसी वजूहात की बिना पर घर में बीमारी ही रहती है। उनकी तफसीलात आगा भाई ने ली, वो बताएंगे उनके हिसाब के से क्या उनके पास रिजल्ट आया। लेकिन मुफ्ती नूर रहमानी साहब भी कुछ फरमाना चाह रहे थे, उसके बाद मैं आप लोगों की तरफ आऊंगी और आप लोगों की कॉल्स की तरफ भी। जी हजरत। ये दो बातें, एक होती है आजमाइश, एक होता है बीमारी। ठीक है, ये अजाब है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आजमाइश है। मौला कायनात से कितना अली हैदर कर्रार के पास कुछ लोग आते हैं और ये सारे मामले डिस्कस करते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं सैयदना कायनात के वाक़यात पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 2017 के वाक़यात हैं। अरे हज़रत, ऐसा आपने लगता है कि बिल्कुल आज ऐसे ही के कहा। लोग चल कर उनके बिल्कुल दरबार में, ऐसे ही लगता है। वो आने वाले, अच्छा पूछने वाला भी वही, जिस तरह आज सामने बहन पूछ रही है, भाई पूछ रहे हैं कि ए अली हम परेशान हैं, हम तकलीफ में हैं, ये बताइए क्या मामला है। प्यारा जवाब दिया, कहा कि अगर तुम अल्लाह से करीब हो गए ये तो आजमाइश है, और अगर अल्लाह से दूर हो गए तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब है। पहले हमें अपनी हालतों को भी देखना है कि हम कहीं अजाब में तो गिरफ्तार नहीं, अगर अजाब में है तो हमें रुजू इल्लाह करना है, और अगर आजमाइश में है तो हमें शुक्र करना है, हमें शुक्र करना है। जिन बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें चाहिए कि वो इस्तग़फ़ार की कसरत करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम की कसरत करें। इस तरह बहन ने कहा कि बच्चे बहुत लड़ते हैं तो उन्हें चाहिए दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, और जब खाना बनाए बिलखुसूस तो दुरूद पढ़ते रहें। इमाम राजी अलैहिर्रहमान लिखते हैं अपनी किताब में कि जिस खाने पे दुरूद पढ़ा जाता है या जिस खाने पे अल्लाह का नाम लिया जाता है, ये खाना उस वक्त तक हजम नहीं होता जब तक खाने वाले की बख्शिश न करवा दे। अल्लाह, एक तो खाने वाले की बख्शिश भी हो जाती है, दूसरी बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाम मोहम्मद के सदके में आपस में मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत, मछली को पानी से मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत है, पानी के बगैर रह नहीं सकती। इसी तरह जब आप दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ के खाने पे दम करेंगे तो आपस से मोहब्बत नहीं होगी बल्कि मवद्दत होगी, कोई किसी के बगैर रह नहीं सकेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। दुरूद शरीफ की बरकत। अगर भाई आप कुछ फरमाएंगे क्योंकि एक हैदराबाद से कॉल भी है। जी हैदराबाद से कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है? आवाज नहीं आ रही मेरे भाई। मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ बाजी। जी मोहम्मद भाई, कैसे हैं मोहम्मद अली भाई? अल्लाह का शुक्र बाजी, आप सुनाए आपकी तबीयत ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मालिक का बहुत करम है। जी बताइए मोहम्मद अली भाई, क्या सवाल करना चाहेंगे, किस हवाले से, क्या परेशानी है? बाजी मैं 2 सवाल करना चाहूँगा। एक हमारे भाई होते हैं अब्दुल कादिर, और वो रिक्शा चलाते हैं, तो ज़रा उनके भी कारोबार में थोड़ा सा मसला है, और मैं भी मेहनत बहुत करता हूँ, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता हूँ, लेकिन जो है ना कारोबार में रुकावट बहुत आती है। ठीक है मोहम्मद अली भाई, तो आप क्या चाहते हैं, आप कुछ पढ़ने के लिए पूछना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अगर पढ़ने के लिए मुझे मिल जाए बेहतर, और मैं एसी टेक्नीशियन का काम करता हूँ। ठीक है। आपका नाम और वालिद का नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अली है, वालिद साहब का नाम अजीम बख्श है। अजीम बख्श। और वालदा का?
वालदा का नाम है खुर्शीद बेगम। खुर्शीद बेगम, ठीक है मेरे भाई, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताते हैं। और अब यहाँ से कोई सवाल, अगर ये एक बहन काफ़ी देर से अबाई में बैठी हैं, अगर इनको दे दीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम मायाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मारिया असलम है जी मारिया। मेरी शादी को 4 साल हो गए। ठीक है। और जब से मेरी शादी हुई है ना, जब से मेरी कुछ कैफियत जो है ना वो बहुत अजीब सी हो गई है। मैं बैठे बैठे सो जाती हूँ, मेरे कंधे शदीद भारी रहते हैं, कभी इतना गुस्सा आता है कि शौहर को भी नहीं पता चलता कि वो हैं सामने, कुछ उठा के फेंक दिया, मार दिया। मुझे 3 साल बाद अल्लाह मियां ने औलाद दी है, तो अब मेरी वजह से मेरी औलाद को हाथ का फ्रैक्चर हो गया क्योंकि मैंने उसको बेड पे से धक्का दे दिया था। इन्होंने कहा कि पूछिएगा क्या ये जब ये अपने शौहर को देखती हैं तो जब इनकी कैफियत ऐसी होती है? जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद से मेरा यही हाल है। सोती हूँ तो एक हफ्ते सोती रहती हूँ, जागती हूँ तो अभी मैं 17 दिन से जाग रही हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। 17 दिन से जाग रही जी, मैं मुसलसल 17 दिन से, और मैंने 4 साल में एक नमाज भी नहीं पढ़ी, एक नमाज, एक रोज़ा, कुछ भी नहीं। और सिर्फ मुफ्ती साहब एक सवाल कर रहे हैं बहन, आपको सिर्फ जब शौहर के मामले में ऐसी चिड़चिड़ी होती है या आप हर चीज़ में कब गुस्सा आता है, कब नींद आती है, कुछ नहीं पता, कब कंधे दुखने लगते हैं, सर भारी होने लगता है, कुछ नहीं पता। शादी से पहले आप बिल्कुल नॉर्मल? मैं बिल्कुल नॉर्मल। इनके माइक्स ऑन रखिए, सवालात कर रहे हैं ये लोग जी। तो क्या आप शादी से पहले ठीक थी? जी मैं बिल्कुल ठीक थी, शादी से पहले मुझे कुछ नहीं था। शादी होते ही मामला। अच्छा मारी, ये बताओ आपके वालिदा वालिद के क्या नाम है? मेरे वालिद का नाम असलम। और वालिदा का नाम? वालिदा का नाम सायरा। सायरा है। मारी जी, माया खान जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको किसी अच्छे नफ्सियाती किसी डॉक्टर को चेक कराने की ज़रूरत है और इसको तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये अलामात मुझे लगता है कोई जादू की या किसी ऐसी चीज़ की नहीं है, बल्कि ये नफ्सियाती मसला है। और ये नफ्सियाती किसी अच्छे माहिर के साथ बाकायदा अपना आपको चेकअप करो। फिर भी नाम के हिसाब के आपके जो सूरह निकलते हैं, सूरह रहमान और सूरह कलम और सूरह वाक़िया। सूरह रहमान, सूरह कलम और सूरह वाक़िया, आप ये तीनों सूरह पढ़ें और पानी को फूंक के पी लें। और उसके साथ साथ मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास भी जाएं। और साथ साथ क्योंकि साहब भी क्योंकि कुछ सवाल हकीम भी है माशाल्लाह, ये भी इस हवाले से भी देख लें। आपको क्या लगता है हजरत? जो कैफियत बता रही है ना कि इनको बार बार तो गुस्सा भी आता है, कंधे भारी हो जाते हैं, सही बात है। कभी कभी नफ्सियाती मसला भी ऐसा होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी वो शैतान भी तंग करते हैं, शैतानी मामलात भी होते हैं। उन्होंने एक बात की कि मैं नमाज से बहुत ज़्यादा दूर हो गई हूँ, क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से दूर हो गई हूँ, और मैं जो हूँ वो अल्लाह के ज़िक्र ना रोज़े रमज़ान के अंदर वो खुद कह रही रो रही हैं किस कैफियत के अंदर है, यानी कि वो चाहती हैं और चाहने के बावजूद नहीं कर पा रही। डॉक्टर साहब मुझे 15 सिपारे हिफ्ज़ थे। अल्लाह अकबर। मैं हाफिज़ा हूँ। आप जाके एक काम करें, आपा के सूरह फातिहा वहाँ पढ़ें, उनके सामने उनकी क्या कैफियत होती है। मैं पढ़ती हूँ या आप? मैं बड़ी वज़ू में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहते हैं मुझे, मैं भी पढ़ सकती हूँ, आप भी जैसा आप बोलें। एक वक्फे के बाद, वक्फे पे आप मुझे बता दीजिए। फजीला थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, हम हाजिर होते हैं। इन बहन की तबीयत के हवाले से मुफ्ती साहब भी चाह रहे हैं कि पता कर लें क्या हल हो सकता है। हमारे साथ रहिएगा, आपके वज़ाइफ, आपके सवाल तो यहाँ पर वज़ाइफ अभी हाजिर होते हैं। अल्लाह रहम करे। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर
सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक
دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادو، آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے، اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ लंदन पेरिस यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। में हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तक। बर्तानिया में इलेक्शंस के लिए पोलिंग 650 नशिस्तों पर 3000 से जायद उम्मीदवारों में मुकाबला। कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी आमने सामने, 40 पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार भी मैदान में। 24 न्यूज पर इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज। हसन नवाज की GIT में दूसरी पेशी, मनी ट्रेल और कतरी शहजादे के साथ कारोबार से मुताल्लिक पूछगिछ। कमेटी ने चौधरी शुगर मिल्स का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। पार्लियामेंट के बाहर शेख रशीद से नून लीगी वर्कर की हाथापाई, गाड़ी के पैसे न देने का इल्जाम। नूर आवान सरकारी प्रोटोकॉल में थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल, शेख रशीद की मुकदमे के लिए दरखास्त। पार्लियामेंट में चर्च के चर्चे, पार्लियामेंट लॉजेस में खुले आम चर्च पी जाती है। हाफिज हमदुल्ला का सनसनीखेज इंकशाफ। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान के गिलानी हाउस पहुंच गए। यूसुफ रजा गिलानी की अफ्तार पार्टी में शिरकत करेंगे। कई सियासी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी मुतवक्के। कारकुनान की गिरफ्तारी पर सिंध असेंबली में MQM के अरकान का शोर शराबा। डेप्यूटी स्पीकर शहला रजा का बजट से हटकर बात करने की इजाजत देने से इनकार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तरबेला में SSG ट्रेनिंग एरिया का दौरा। नाइजीरिया के कमांडोज की तरबियत का मुआयना। कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका तौर पर काम करना होगा। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की श्रीलंका
इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। आप हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त रमजान इश्क के नशरियात 24 न्यूज़ HD पर आप बराह रास्त इस वक्त हमारी नशरियात देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम अपने उलमाए कराम के साथ अपना राह हक की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें इंशाल्लाह आज अल्लामा शहनशाह नकवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारी बहन, हमारी मोहब्बत 2-3 दिन में इतनी ज़्यादा हो गई है उनसे कि अब वो इस टीम का हिस्सा बन चुकी है। रबाब वो भी हमारे साथ होंगी और इस नशरियात में अब तक जो सवालात थे उनके जवाबात लेना ज़रूरी है। आपके मज़ीद कॉल्स माजरत के साथ कल लूँगी या आप इस वक्फे के बाद जब हमारा उलमा कराम का सेगमेंट होगा, अगर आप उस हवाले से पूछना चाहें तो। जिन केसेस का जवाब देना था और जाने से पहले एक खातून थी मारिया, अगर आगा भाई उनका रहमानी भाई कह रहे थे कि सूरह फातिहा, मैं कह रहा था कि सूरह फातिहा पढ़ के देख लीजिए। अगर इसको इधर बुला दे बेहतर नहीं होगा, थोड़ा करीब आ जाए। अगर आ सकती हैं बेटा आप पूछ लीजिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बात है कि 4 साल से नमाज नहीं पढ़ रही है और ये इबादत इलाही से दूर होना, और हाफिज कुरान भी रही है, और ये तो बिल्कुल ही आप खुद सूरह फातिहा पढ़ो, आप हाफिज रही हो ना, आप हैं कुरान पढ़ो, इधर आओ कुरान। मुझे नहीं आना। मैं क्या करूं? आप कुछ नहीं, आप बैठिए बस। ठीक है, मैं जाऊं? नहीं वो मुझे लगता है कि शैतानी मामला, शैतानी मामले में मैंने अभी से सूरह फातिहा होगा। अभी जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया ना तो फौरन चली गई। हाँ, सिर्फ सूरह फातिहा का सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ा था, वो जो चली गई, उसका मतलब है उसमें शैतानी मामला, शैतान का मामला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उनके साथ कोई आया भी है कि नहीं, वो अकेली आई हैं? इसको कोई देख ले, वाकई बिल्कुल सही। मैं नहीं जाऊँ, आप ये कह रहे हैं? नहीं आप नहीं, आप छोड़ दे। आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिफ्लेक्ट भी करता है। हुबा, मरियम, सुमेरा, प्लीज उनको देखिएगा, अगर वो अकेली ना आई हो प्लीज उनको देखिए। हाँ, कहीं गिर न जाए। ये अलामत तो बिल्कुल शयातीन की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, शयातीन की अलामत, हमज़ात और शयातीन के। अच्छा, कभी भी ऐसा मामला हो ना तो पढ़ने से पहले अपने ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक लें और अपना हिसार कर लें। सूरह फलक, सूरह नास। जी, अगर घर में है किसी के साथ ऐसा मामला, तो घर के जो साथ रहने वाले लोग हैं वो क्या करें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। उनको चाहिए कि पहले अपने ऊपर सूरह फलक, सूरह नास पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, ताकि आप एक शील्ड के अंदर, एक हिफाजती हिसार के अंदर आ जाएं। आप अपने ऊपर पढ़ लें, उसके बाद फिर जब आप उस पर पढ़ेंगे तो उसका फिर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि रिफ्लेक्ट से मिरर, शीशे पे आप लाइट मारते हैं ना, वो रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो इसी तरह कभी कभी असरात फिर आपको भी तंग करते हैं। तो आप सूरह फलक और नास पढ़ के दम कर लें, इंशाल्लाह वो बेहतरीन थी ना वो बच्ची, अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई। अभी भी देखिए इनके पास कोई भी वहाँ बैठा हुआ सूरह फलक और नास पढ़ेगा ना, फूकेगा, उसी तरह शोर मचाएंगी। अच्छा, रमजान में नहीं, जिन्नात के मामले शैतान कह देना है, तो शैतान से मेरी मुराद खबीस जिन्नात। लेकिन भाई भी यहाँ पे एक बात और पूछूंगी, जैसे अभी हमने पढ़ा, अगर घर में या फैमिली में कोई अगर हम पढ़ेंगे तो फिर वो घर छोड़ के भाग जाएंगे। अच्छा, आप इसको इधर ला सकते, इधर बिठा दे, जरा 1 मिनट के लिए इधर बिठा दे इसको लाकर। ठीक है, अगर वो शिद्दत रखें तो फिर ब्रेक में करिएगा, अगर वो शिद्दत करे ना तो फिर क्यों, खातून है, अच्छी बात नहीं है, उनके पर्दे का ख्याल रखना है। हाँ, पर्दे का ख्याल रखना है बहुत ज्यादा। इसको थोड़ा सा, हाँ, वो मुझे लगता है कि ये बिखर जाएंगी एकदम।
اگر سورہ فلق ناس پڑھا ادھر گیا صوفے پہ بٹھا دوں اگر نہیں آنا چاہ رہی ہیں ادھر سامنے والے صوفے پہ اگر آپ جیسا آپ سمجھے اس صوفے پہ بٹھا کے دیکھیے ادھر اللہ رحم چھوٹے بچوں کو سائڈ میں کر لیں وہ جو بیٹھے ہیں نا قریب میں سائڈ بچوں کو سائڈ پہ کر لیجئے بیٹا بچوں کو اٹھا کے نا اس طرح بھیج دیں ایسا نہ ہو کہ کچھ بچہ کسی بھی صورت اگر ایسا ہو سکتا ہے مفتی صاحب ہم اور آپ اور ہمارے ادھر چلتے اس کے قریب جا کے تھوڑی کچھ پڑھے دیکھیں کیا ہوتا ہے ذرا کچھ چیزیں دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں آپ بیٹھی رہیں نا ہاں بیٹھی رہیں میں ادھر ہی رہوں کیونکہ مجھے یہ اس طرح کی ظاہر ہے میری اصل میں وہ ہائپر ہو رہی ہے ابھی اس کے ہاتھوں کے انداز سے یہ بات معلوم چل رہی ہے کہ اس وقت ہائپر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بچی بتا رہی تھی میرے کندھے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم ماریا اسلم بتایا تھا انہوں نے ماریا ہوش میں ہو کیا ہو رہا تھا تمہیں مجھے کسی چیز نے فورس کیا کہ مجھے آگے نہیں جانا ابھی تم بہتر ہو نارمل ہو اچھا اب پڑھو سورہ فاتحہ پڑھو مجھے نہیں یاد کوشش جو کرو بھی آتا ہے پڑھو شاباش کوئی بھی سورہ سورہ پڑھو کوشش کرو شاباش پڑھو دیکھو ہمت کرو دیکھو میری بہن ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ نے انسان کو بہت بڑی طاقت دی اور قرآن مجید فرقان حمید جو ہم پڑھ لیں نا یہ سب سے بڑا ہے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہ انسان ہم نے تجھے فضیلت دی ہے تم قرآن پڑھو گی تمہاری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی تمہارے چھوٹے بچے ہیں تم ڈرو نہیں خوف نکالو اپنے اچھا چلے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ ہاں ان کے ساتھ پڑھ لو بیشتی لا الہ الا اللہ پڑھو شاباش ہمت کرو محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ شاباش پڑھتی رہو لا الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھو پڑھو شاباش مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین صراط الذین انعمت علیہم انعمت علیہم غیر غیر المغضوب المغضوب علیہم علیہم ولا الضالین ولا الضالین اب خود پڑھو جلدی جلدی پڑھو تمہیں کچھ نہیں پڑھو شاباش الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اب ڈرنا نہیں دیکھو تمہیں ابھی ایک خوف اس کے دل میں بیٹھ چکا ہے کہ وہ جو شیاطین جو کبھی مجھے لگتا ہے اس کے اوپر شیطانی اثرات ہیں اور شیطان کی وجہ سے نا اس کے ساتھ نفسیاتی معاملات بھی ہو گئے وہ دونوں چیزیں وہ اسٹریس کی کیفیت میں جو لوگ گھر کے اندر پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر ایسے معاملات ہوں ایک تو وہ سورہ فلق و ناس کی تلاوت کریں سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھتے رہیں اور اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ معجون آتا ہے معجون نجا یا جڑی بوٹی ملتی ہے چھوٹی چندن کے نام بالکل ٹھیک ہے وہ پیس کر جو ہے وہ آپ خود بناتے ہیں نا آپ خود بنا کے دے دیں آپ کا خود اپنا کام ہے میں یہ بتا رہا ہوں کہ تاکہ گھر کے اندر بھی ایسے جو لوگ ہیں نا وہ استعمال کر سکیں چھوٹی چندن ٹھیک ہے تھوڑی سی ماشا لینا 6 ماشا اس کے ساتھ 1 چمچ شہد ملا کر ایسے پیشنٹ جو نفسیاتی دباؤ کے اندر ہوں جو کسی بھی تکلیف کے اندر ہوں یا بہت زیادہ ہائپر ہو رہے ہوں جو شوہر ہائپر ہو رہے ہوں بیوی ہائپر ہو رہے ہوں کسی بھی ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے تو وہ استعمال کریں گے انشاءاللہ وہ کم ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی جزاک اللہ خیر کسی اور کی تو طبیعت بھاری نہیں ہوئی تھی مایا ایک بات اور کی تو ہیوی تو نہیں ہوئی تھی ضرور شیئر کر لیجیے جتنی چیزیں چل رہی ہیں اس کا مطلب ایک چیز جو مجھے فیل ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں نیگیٹیوٹی
बहुत नेगेटिविटी हर जगह, हर घर में, हर इंसान के अंदर नेगेटिविटी का ऑप्शन मतलब बेतहाशा उसके अंदर आ गई है। तो हमें खुद अंदाज़ा नहीं होता कि हम कितने नेगेटिव चल रहे होते हैं, औरतों को खासकर बिल्कुल नहीं पता चल रहा होता है। तो वो ऐसा करना चाहिए, अपने घर में एक शीशे का बोल लेके या बड़ा जग लेके पानी भरना है उसके अंदर, और मुट्ठी भर उसमें समुद्री नमक डाल देना, समुद्री नमक, और वो आप रख दीजिए। उसके अलावा जो है ब्लू लाइट, कोई सा भी लैंप ले लें, उस पर ब्लू सेलोफेन पेपर चढ़ा लें, और यह ब्लू कलर की लाइट्स मिलती है। दिन में 1 घंटे के लिए घर में, पूरे घर में ब्लू लाइट लाजमी जलानी चाहिए। तो वो नेगेटिविटी जो है आपके अंदर से, इम्प्योरिटीज़ जो है वो दूर हो जाती हैं। और जो पानी है वो कुछ ही दिन में, जिनके घरों में नेगेटिविटी होगी वो पानी फौरी तौर पे गदला होना शुरू हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अभी इनकी तबीयत ठीक है? बेहतर है। आगा भाई और जो जिन बहनों का और लोगों का इलाज है मोहम्मद अली भाई का, वो हम ट्रांसमिशन में थोड़े वक्त बाद बताएंगे, क्योंकि हमारे उलमा कराम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। हम चलेंगे राह हक की तरफ। आप लोगों का इंतज़ार इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। आई जस्ट होप ये खातून और ये बहन अब बेहतर फील कर रही हूँ। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फरमाए। इस वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, रमज़ान इश्क नशिया जारी, राह हक की तरफ बढ़ेंगे हमारे उलमा कराम की रहनुमाई में। अल्लाह इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते
लिखते रहे जुनूं की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD।
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी ज़माने में हमारा या रसूल अल्लाह नहीं कोई ज़माने में हमारा या सर से पाँव तक डूबा हुआ गम के समंदर में नहीं आता नजर कोई किनारा या खुदा ने आपको रहमत बना कर फर्श पर रखा। खुदा ने आपको रहमत बना कर फर्श बख्शिश को उतारा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह और सिवाय आपके कोई नहीं अर्शी का दुनिया में सिवाय नहीं
سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. خواتین و حضرات رمضان عشق ہے نشریات میں میری بہن رباب نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے حضور پیش کی. پروردگار ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے. راہ حق شروع کرتے ہیں اپنے علماء کرام کی رہنمائی میں. یہ سیگمنٹ چند سالوں سے چلا آ رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ تلاش گمشدہ، ایک ایسی چیز اور ایک ایسی سوچ، ایک ایسی اچھائی کی تلاش ہم ہر سال کرتے ہیں جو شاید معاشرتی طور پر غائب ہو چکی ہے. اب اس کو ڈھونڈا کیسا جائے؟ اس کو ڈھونڈنے کے لیے روشنی چاہیے. وہ روشنی ہمارے علماء کرام ہمیں دکھاتے ہیں. علامہ شہنشاہ نقوی صاحب یہاں موجود، مفتی نور رحمانی صاحب یہاں موجود. السلام علیکم. ایک بار پھر خوش آمدید علامہ صاحب آپ کو. میں کہوں گی ہبا ہمارے آج کے علماء کرام کو تلاش گمشدگی کس چیز کے حوالے سے ہم ڈھونڈ رہے ہیں آپ کی اجازت سے. ہماری ٹیم بھی آپ کی طرف یہ پیپرز لے کر آئے گی. تلاش گمشدہ برائے وہ ساس سسر جو بہو کو بیٹی سمجھتے تھے. خواتین و حضرات ایک ضروری اعلان. وہ ساس سسر جو اپنے بیٹے کے لیے لڑکی پسند کرتے ہوئے ہونے والی بہو میں بیٹی کی خوبیاں تلاش کیا کرتے تھے اور شادی کے بعد بہو کو واقعی بیٹی کا درجہ دے کر ماں باپ کا سا سلوک کرتے تھے، اب گم شدہ ہو چکے ہیں. ان ساس سسر سے گزارش ہے کہ گھر میں ماسی بنی ہر کسی کی باتیں سنتی ڈری سہمی بہوؤں کے پاس واپس لوٹ کر آ جائیں. حضرت آپ کا پسندیدہ حصہ ہماری ٹرانسمیشن کا، آپ کی نظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سال گزشتہ آپ نے یہ جو طریقہ اپنایا تھا یہ تلاش گمشدہ کا، اس کا اچھا اثر ہم نے معاشرے پر دیکھا تھا. بہت دیر تک بہت دور تک اس کو گفتگو میں لایا گیا، بلکہ انتظار ہوتا تھا کہ آج کس کی تلاش ہوگی. سال گزشتہ ہم نے جب یہ پروگرام کیے آپ کے ساتھ تو میں نے اس لیے خواہش کی تھی کہ اس انداز کو تھوڑا سا، تو بہت شکریہ آپ کا، آپ کے ساتھیوں کا، آپ کے ادارے کا کہ اس انداز کو دوبارہ سے اپنایا ہے. اقدار معاشرے میں گم ہو گئے ہیں، تہذیب معاشرے سے رخصت ہو رہی ہے. ہم ایک بات کر چکے ہیں اب سے چند دن پہلے کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممتاز اور بہتر ممالک میں ہے کہ جہاں دین ہے، جس کی موٹی موٹی باتیں اور دلیلیں یہ ہیں کہ ماہ ربیع الاول کے اندر نبی مکرم کی مدحت اور نعت گزاری اور آپ کی حمد و ستائش اور آپ کی تعریف میں جتنی محافل اور جتنے اجتماعات پاکستان میں ہوتے ہیں حتیٰ دوسرے ممالک میں نہیں ہوتے. یہی کیفیت محرم الحرام میں ہے. اولاد رسول اہل بیت پیغمبر سے محبت کا اظہار جتنا پاکستان میں ہوتا ہے سنی شیعہ سب مل کر پاکستان ہی کرتا ہے، بے شک وہ اور کہیں نہیں ہوتا. یہی ماہ جی نظر آتا ہے. ماہ مبارک رمضان آپ نے دیکھا روز عاشورہ کا جو سانحہ ہوا تھا 2010 میں، اس میں 52 شہیدوں میں 32 اہل سنت تھے. یعنی روز عاشورہ کے جلوس میں، مرکزی جلوس میں سنی شیعہ سب ہوتے ہیں. علامہ صاحب ایک بات کرتے ہوئے، ابھی بھی جو سانحات اور جب بم بلاسٹ ہوئے ہیں، میں اہل سنت ہونے کی حیثیت سے شدید مذمت کرتا ہوں. اور جہاں مزارات پر، پارلیمنٹس پر، جہاں یہ ہو رہے ہیں، وہ ایران کا ذکر کر رہے ہیں، بالکل وہ انسان نہیں بلکہ وہ حیوانیت کے بھی انتہا پر ہے. قرآن نے کہا نا بل اضل، کہ وہ بہت زیادہ گمراہ ہیں. اب آپ بات جی ہاں، یہ تو پاکستان میں محرم میں، ربیع الاول میں، ماہ مبارک میں دیکھیں آپ افطار کے وقت میں پاکستان کے روڈ سنسان ہوتے ہیں کیونکہ لوگ نماز اور افطاری میں مصروف ہوتے ہیں. صبح کی جماعت، مسجدیں بھری بھی ہیں. پاکستان میں دین ہے مگر دین کی سمجھ نہیں ہے، دین کا فہم نہیں ہے. وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، کیوں جائیں ہم تعلیم حاصل کرنے. میں ایک آپ کو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے خواب دیکھا اور نبی سے آ کر صبح کی نماز کے جماعت میں کہا یا رسول اللہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے اور عجیب منظر ہیں. حضرت فرمایا کیا دیکھا؟ خواب بڑا طویل ہے مگر اس کا ایک حصہ فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک آسمان سے کپڑا لٹکا ہوا ہے اور ایک تھان جیسے بہت بڑا کپڑا، اور منادی ندا دے رہا ہے کہ پورا لے جاؤ.
सारा कपड़ा ले जाओ, लेकिन लोग उसको काट काट के कैंचियों से टुकड़े टुकड़े करके ले जा रहे हैं। और मुरादी कह रहा है इसे आधा आधा नहीं लेके जाओ, टुकड़े टुकड़े नहीं ले जाओ, इसको पूरा ले जाओ। पूरा ले जाओ। कहते हैं एक मर्तबा फिर मंजर बदला, जाबिर फरमाते हैं एक मंजर बदला, मैंने देखा कि एक खूबसूरत सोने से बना हुआ एक कुआं है जिस पे जवाहरात जड़े हुए हैं। जब मैं उसके करीब गया, क्योंकि दूर से बड़ा हसीन लग रहा था, जब मैं उसके करीब गया तो उसके अंदर से बदबू उठ रही थी, ताफुन उठ रहा था, उसमें गंदगी भरी हुई थी। फिर मंजर बदला, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने मंजर देखा कि ताज़ा सेहतमंद गाय भी हैं और दुबली गाय भी हैं और दोनों के थन हैं। तो ये आवाज़ आती है, निदा देने वाला कहता है कि ये जो ताज़ा सेहतमंद गाय हैं इनका दूध निकाल लो। लोग आ रहे हैं मगर वो दुबली गाय का दूध निकाल रहे हैं जिससे खून निकल रहा है थनों से, और वो कह रहा है इससे दूध निकालो जो ताज़ा बड़ी और सेहतमंद गाय हैं। जाबिर कहते हैं फिर मंजर बदला, मैंने देखा एक बहुत तवील क़ामत इंसान है कि जो दो तालाबों के दरमियान खड़ा है और एक बहुत बड़े ज़र्फ़ से एक तालाब से पानी लेता है जिसमें पानी भरा हुआ है और एक तालाब जो खाली है उसमें पानी डालता है, मगर ना वो तालाब भरता है ना तालाब ये कम होता है। और जाबिर कहते हैं कि या रसूलल्लाह ये मैं ख्वाब देखा है आज। हज़रत ने फरमाया जाबिर तुमने ख्वाब नहीं देखा बल्कि आखिरी ज़माने के हालात देखे हैं। आखिरी ज़माने में जब हालात होंगे वो ऐसे ही होंगे। फरमाते हैं सरकार के जाबिर वो जो तुमने देखा, अल्लाह अकबर, वो जो तुमने देखा कि एक आसमान से कपड़ा लटका हुआ है और मुनादी निदा दे रहा है कि पूरा ले जाओ, लोग काट काट के ले जा रहे हैं, ये आखिरी ज़माने का इस्लाम होगा। लोग अपनी पसंद का इस्लाम लेंगे, लोग मुकम्मल इस्लाम नहीं लेंगे। मेरे लिए ये अच्छा है तो बस ये ले लूं। यानी बाज़ औक़ात इतना अफसोस होता है कि एक नमाज गुजार, एक हाजी, एक खुम्स ज़कात देने वाला, एक दीनदार इंसान, माशाअल्लाह चेहरे पे दाढ़ी भी है, बाज़ औक़ात हिजाब भी उसका मुकम्मल है, मगर जहां उसका मफाद टकरा रहा होता है वहां दीन को छोड़ देता है, इस्लाम को छोड़ देता है। हज़रत ने फरमाया आखिरी ज़माने का, मैं इसको आपको जल्दी मुकम्मल करूं, यकीनन आपके पास वक्त की तंगी भी है कि फिर फरमाते हैं वो जो तुमने देखा कि जो है वो एक सोने का बना हुआ तालाब है, कुआं है और उसके अंदर से बदबू उठ रही है, ये आखिरी ज़माने के उलमा होंगे। इनका ज़ाहिर बहुत अच्छा होगा, इनके चेहरे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जब तुम करीब जाओगे तो इनमें से बदबू आएगी तुम्हें, इनके किरदार की कमजोरी की बदबू आएगी। ये आखिरी ज़माने के उलमा होंगे। और फिर फरमाते हैं कि वो जो तुमने देखा कि वो जिनके थनों में दूध था उनसे दूध नहीं निकाल रहे, और जिनके कमजोर गाय हैं जिनके दूध नजर नहीं आ रहा उनसे दूध निकाल रहे तो खून निकल रहा है। अल्लाह अकबर। फरमाया ये आखिरी ज़माने के हुक्मरान हैं कि गरीबों को पीसेंगे, कुचलेंगे, और हुक्मरान अमीरों को नजरअंदाज करेंगे, उनके जुर्मों को, उनकी खताओं को, उनकी गलतियों को, उनके मुकद्दमात को माफ कर दिया जाएगा, उन्हें नजरअंदाज किया जाएगा। बिजली का बिल भरना है तो गरीब को भरना है, परेशानियां उठानी है तो गरीब को उठानी है, अमीर के लिए आसानियां। या आखिरी जमाने की हुकूमतें होंगी। आखिरी बात जिसमें हजरत ने फरमाया कि वो जो तालाब से पानी निकाल कर एक शख्स डाल रहा होगा वो मलकुल मौत होगा, वो लोगों को मार रहा होगा इस दुनिया से उस दुनिया में। ना यहाँ लोग कम हो रहे होंगे ना वहाँ लोग भर रहे होंगे। अक़दार पामाल हो रहे हैं, तहजीब मिट रही है, तहजीब मिट रही है। ये जो मंजर कशी की है अभी हजरत ने, मेरा ख्याल है मैं इसके बाद अब कुछ नहीं कहना चाहती। तो वक्फा लीजिए, वापस आइए, इस मंजर कशी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आईना दिखाया जा चुका है, हाजिर होते हैं सब पे। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD।
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे दुआ नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन पेरिस यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। को सड़कों पर लाकर सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम हमें 24 न्यूज़ पे बराह रास्त और वक्त पे जाने से पहले हमारे उलमा कराम से बात हो रही थी। आज जो हम तलाश कर रहे हैं ऐसे सास ससुर को जो पहले बहू की जगह बेटी तलाश करते थे, जो जिसको वो बेटी की तरह घर में भी रखते थे। घर में आज क्या माहौल हो गया है, ये नहीं कि सब ऐसे हैं, लेकिन ऐसे हैं भी इसी माशरे में। हमारे साथ एक बहन है जो मेरे ख्याल टीम से उन्होंने कहा है हाथ अगर खड़ा कर लें आप कहाँ पर बैठी हैं।
جی السلام علیکم. جی بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے علماء اکرام کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ میرے ہی محلے کا قصہ واقعہ ہے جو کہ مائک سامنے رکھ لیجیے گا بہن جی. میرے ہی محلے کا قصہ واقعہ ہے جو کہ کچھ چند سال پرانا. اچھا. جو کہ میں اپنی آنکھوں سے دکھا کرتی تھی. میں آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہوں گی اس واقعے سے. جی جی. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک ماں جو اپنے بیٹے کو کم کیجیے گا. ماں جو اپنے بیٹے کو بے تحاشا چاہتی ہے, پیار کرتی ہے, پالتی ہے, پوستی ہے, جوان کرتی ہے, اور ادروائز جب وہ وقت آتا ہے جب وہ اپنی بہو لانا چاہتی ہے تو ہر ایک وہ خوبی تلاش کرتی ہے اس لڑکی میں جو کہ ایک بیٹی میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ تھوڑا سا لیول کم کر دیجیے گا. جی. ہر وہ خوبی تلاش کرتی ہے اس لڑکی میں جو کہ وہ اس کی بیٹی میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اس عورت کو وہ بیٹی مل تو گئی, لیکن اس نے یہ حشر کیا اس بیٹی کا کہ جب اس کا شوہر گھر سے چلا جاتا تو اس کو ایک کمرے میں بند کر دینا, اسے کھانے پینے سے بالکل معذور کر دینا, بالکل کھانا پینا بند کر دینا. یہ حد تو حد یہ ہوتا تھا کہ اس کو پانی کی پیاس بھی محسوس ہوتی تھی نا تو وہ رو کے دروازے بجایا کرتی تھی کہ کم سے کم مجھے پانی تو پلا دو. تو مجھ سے یہ آپ لوگوں سے سوال یہ ہے ہمارے اس معاشرے سے کہ وہ بیٹی کیا ہے جو اپنے گھر کی بیٹی بیاہ کر آپ دوسرے گھر پہ بھیجتے ہیں تو اس سے تو سب کچھ خوبیاں چاہتے ہیں. اب وہی بیٹی ایک اپنے گھر میں آتی ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہے. تو یہ اس معاشرے کا المیہ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. حد تو حد یہاں تک یہ ہوا کہ میں نے چھپ چھپ کر یعنی کہ میں نے خود چھپ چھپ کر اس عورت کو, اس بچی کو کھانا کھلایا. اب میں آپ لوگوں کو اس لیے کہ علماء اکرام بیٹھے ہوئے اس لیے یہ بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. تھوڑا سا میں نے نقاب اس لیے کیا کہ ان لوگوں کو میرا چہرہ ظاہر نہ ہو. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, لیکن ان کی اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. دیکھیے یہ اجازت ہے آپ لوگوں سے؟ میں یہ اصل میں نفسیاتی مسائل ہیں اور ہمارے معاشرے پر جو حیوانی نفسیات ہیں. احادیث میں بعض اوقات آیا ہے کہ فلاں جانور سے کی طرح نہ ہو جاؤ, فلاں جانور کی طرح نہ ہو جاؤ, حدیث میں ہے یہ. اور حتیٰ یہ بھی آیا ہے کہ فلاں جانور کی طرح ہی ہو جاؤ, یہ بھی آیا ہے. تو جو اب دیکھیں یہ خاتون یعنی یہ کیا احساس ہے کہ اگر ان کا داماد ان کی بیٹی کے لیے وقت نکال رہا ہو تو بہت اچھا داماد ہے, اور اگر ان کا بیٹا ان کی بہو کے لیے وقت نکال رہا ہے تو یہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا, اچھا بیٹا نہیں ہے, غلام ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے. یہ مسئلہ نفسیات کا ہے. اصل میں مشکل ہمارے معاشرے میں تعلیم کی اور تعلیم کے ساتھ تربیت کی کمی ہے. انہیں بتایا جائے, تم جو 4 سال تک ایک رشتے کو لیے بیٹھی رہی ہیں, ہر تہوار پہ جوڑے بیڑے پہنچاتی رہیں, اور ابھی 1 ہفتے میں تمہیں اس کے دانت لمبے نظر آنا شروع ہو گئے, چال ٹیڑھی نظر آنا شروع ہو گئی ہے, اس نے کپ توڑ دیا, اسے مرچیں زیادہ کر دیتی ہے, نمک کم کر دیتی ہے, سارے عیب نظر آنا شروع ہو گئے 1 ہفتے کے اندر ہی. یہ 4 سال تک جو تم رشتہ بنائے بیٹھی رہیں اس وقت تمہیں اس کا خیال نہیں آیا کہ اس کے اندر کیا. اچھا لائیں گی 18 سال کی اور 24 سال کی, اور تجربہ انہیں 60 سال کی عورت والا چاہیے. بھائی یہ جب جوان آ رہی ہے, جب یہ کم عمر تم بیاہ کر لا رہی ہو بہو, میچور بھی تو ہے, تو اس کی سیکھے گی نا. یہاں میں آپ کو ایک مثال دوں اپنے مولانا نورانی صاحب سے, مولانا ہمارے جو ہے وہ بہشتی صاحب سے, خار رباب سے, کہ عجیب نفسیات ہے, عجیب سا ماحول ہے کہ اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ 1 کا 10 کو سمجھنا زیادہ مشکل ہے یا 10 کو 1 کا سمجھنا زیادہ آسان ہے. یہ جو نئے گھر میں جو ایک بچی جا رہی ہے بیاہ کر, یہ 10 افراد کو سمجھے کتنا ٹائم لگ جائے گا, اسے مدت لگ جائے گی. 10 افراد ایک آدمی کو سمجھ لیں گے چند دنوں کے اندر ہی, اس کے مزاج کو. ایک پوائنٹ, ہمارے ایک بزرگ عالم تھے لکھنؤ کے, جناب مرزا محمد اطہر صاحب, ان کی بڑی اچھی مثال ہے. وہ فرماتے ہیں کہ گندم کی فصل اور چاول کی فصل میں جیسا فرق ہے ایسے ہی لڑکے اور لڑکی میں فرق ہے. وہ فرماتے ہیں کہ گندم کی فصل جس زمین پر بوئی جاتی ہے وہیں سے گندم کو جہاں بویا جاتا ہے اسی زمین سے گندم کی فصل کو کاٹا جاتا ہے, لیکن چاول کی فصل کو جس زمین میں بویا جاتا ہے وہاں سے اس کی فصل کٹتی نہیں ہے, زمین بدلنی پڑتی ہے اس کے لیے. وہ دوسری جگہ جا کر مکمل فصل ہوتی ہے اور پھر وہاں سے کاٹا جاتا ہے. لڑکا اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی باکمال ہوتا ہے, لیکن لڑکی تو باکمال ہوتی ہی سسرال جا کر ہے. واہ سبحان اس لیے کہ اب اسے کام جاب اب ملی ہے اسے, اب وہ آئی ہے تجربہ کرنے کے لیے, اب ہاؤس جاب کے لیے تو اب آئی ہے, لائف میں اب آئی ہے.
اب آپ کو توقعات ہو رہی ہیں کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہو, یہ 70-80 سال کی عورت کی طرح کوئی کام غلط نہ کرے, بلکہ حکیمانہ باتیں ہوں اس کی اور مدبرانہ گفتگو ہو اس کی, اور اس کی گفتگو تو ادھر آپ کو چاہیے کہ جوان 24 سال کی بچی چاہیے اپنے بہو کے طور پر, اور تجربہ آپ کو 60 سال. تو یہ نفسیاتی مسائل ہیں, کونسلنگ کی گفتگو ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے, اس ساس اماں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تمہاری بھی بیٹی ہے تمہارے ساتھ. اچھا, اس چیز سے تھوڑا سا لوگ ڈرتے ہیں, اور ڈرنا چاہیے مکافات عمل سے. مکافات عمل, تم آج کسی کی بچی کے ساتھ ایسا کرو گے تمہارے ساتھ ایسا ہوگا, تمہارے ساتھ نہیں ہوگا تمہاری پوتیوں کے ساتھ ایسا ہوگا. اس طرح کا سمجھانے کا موقع ہے, اور اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. بہت مشکل ماحول ہے. دیکھیے اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جب شادی کے معاملات ہوں تو ایک محفل کا اہتمام ہو, ایک مجلس کا اور ایک درس کا اہتمام ہو کہ شادی سے پہلے لڑکی کو, اور بالخصوص جو ساس یعنی خواتین ہیں, وہ ماں ہوں, وہ بیٹی ہو, وہ بہو ہونے والی بہو ہو, وہ تمام لوگ موجود ہوں, اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت, رسول کی رسالت, اس کے بعد عقیدہ آخرت اور پھر حقوق کے بارے میں بتایا جائے. سبحان اللہ حضرت. جب ہم اس طرح کی گفتگو کریں گے تو تربیت والے معاملات ہو جائیں گے. ساس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ رب ذوالجلال مجھ سے ناراض ہو جائے گا کہ اگر میں نے بیٹی اور بہو میں فرق کیا. اگر بیٹی 10 غلط کام کر دے تو معافی, مگر بہو ایک غلط کام کر دے تو تمہارے گھر والوں نے تمہیں سکھایا نہیں, ہاں فوراً. تو یہ جملے جب وہ ذہن میں ہوں گے نا, اور یہ بات ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت مجھ سے دور نہ ہو جائے. اچھا, یہاں بیٹے کی کچھ خرابیاں ہوتی ہیں. نئی نویلی دلہن کے ساتھ کبھی کبھی بیٹا اتنا زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے, ہونا بھی چاہیے, مگر وہ ماں کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے. جب وہ ماں کو نظر انداز کرتا ہے تو پھر ہوتا یہ, ماں یہ سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا, اس لڑکی نے آتے ہی ساتھ میرے بیٹے پہ قبضہ کر لیا, یا تو جادو کرا دیا اس کی ماں نے, لڑکی کی ماں نے, یا لڑکی کچھ پڑھ کے اور چائے میں ڈال کے دیتی ہے. یہ نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں. ایک اور مسئلہ بھی ہے نورانی بھائی, ایک اور مسئلہ بھی ہے, ماں جو ہے نا وہ محبت کو کی شیئرنگ نہیں چاہتی, تقسیم نہیں چاہتی ہے. یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم جو لالچ ہوتے ہیں نا, لالچ یہ ہوتی ہے, ان ماں باپ کہاں تھے 4 سال تک ایک لڑکی کو کھانا نہیں دے رہے تھے. اس کا مطلب کوتاہی اس لڑکی کے ماں باپ کی ہے. 4 سال تک تو کبھی جا کے بیٹی کی خبر لی انہوں نے, پوچھا جا کر. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اپنی بچی کو رخصت کر کے یہی نہ سمجھ لیا کریں. آپ لوگ اس گفتگو کو معذرت کے ساتھ کاٹ رہی ہوں کہ اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. میں چاہتی ہوں آپ لوگ ہر پہلو پہ, بالکل ہر پہلو کا آپ لوگ پوائنٹ ریز کیجئے. کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ اگر میں بہو ہوں تو میں اپنے آپ کو شاید سمجھنے کی کوشش کروں کہ شاید مجھے بھی کچھ سمجھنا ہے. کہیں کوئی ساس ہو تو شاید وہ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے, کیونکہ دیکھیے ہم امپروومنٹ ڈھونڈ رہے ہیں and nobody is perfect. So let's talk about that. اس وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا.